Hello and welcome in Simple Maths, dear students. Today we will discuss JEE Mains paper of Maths of 24th February of second shift. तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो आप अपने शिफ्ट वाली पेपर कौन सी शिफ्ट की है, किस डेट की है, ये लिख करके मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन f0 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू e स्क्वायर, f डैश x इक्वल टू f डैश 2 माइनस x and we have to find integral of fx from 0 to 2 and question is here is given. So what first we write the given data, and given data for the function is f dash of x equal to f dash of 2 minus of x. Now here we have to find the integral of function. So remind it, here function is function's derivative is given. It means question says to me, first you got integration and after integration we will get their function. So we need to integrate this with respect to x. Dx here is also dx. Now here is a fx, you got it? Yes, but here some procedure we will required. For that, what, let 2 minus of x equal to t, then differentiating both side, dx equal to minus of dt. This minus sign goes opposite to the equality. In that cases, our integration of f dash of, from the place of 2 minus x we put t and dt and minus sign is taken out, then minus of f dash of t plus of integrating constant and that of f dash, sorry, fx, ft, and ft is what, 2 minus of x. So that's why it is what, f of 2 minus of x minus plus of integrating constant. Yes, write as students. Yeah, we will write such as, now from f of x plus f of 2 minus of x equal to constant, we are going to find the value of c from the boundary point of given these questions. And boundary point is what, f0 equal to 1 and f2 equal to e square. So from this we will put x equal to 0, then we got 0 plus of f of 2 equal to c, then f of 0 is 1 plus of e square equal to c, because f2 equal to e square here. So remind it, c is 1 plus e square. Now our function will be in this form, fx plus of f of 2 minus of x equal to 1 plus of e square. This is a constant term. If we integrate this from 0 to 2, because question says we have to integrate this function from 0 to 2 as a limit. So 0 to 2 fx plus fx dx plus of 0 to 2 f of 2 minus x dx. It will be 1 plus of e square. This 1 is a constant, then taken out from the integration, and 0 to 2 dx, right? Then it we will apply the what, the properties of the definite integration here, and that one is makes this both are equal. Then if both are equal, we will write 2 times of 0 to 2 fx dx, right, equal to 1 plus of e square into integration 0 to 2 dx, and dx integration is what, 2, then 2 and 2 is out. So we got it.
right? We got it. Their value is 1 plus a square, but in option is not. So write 1 plus a square. Okay. Next question. We have to find the region bounded by this curve, and this curve follow the inequalities rule. For that, after getting their curve, we have to first decide the which region according to inequalities that curve satisfied. So our beginning work is on that way. देखते हैं क्या आती है. तो फर्स्ट हम कर्व लेते हैं क्या, 5 ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऑफ वाई. इट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/5 ऑफ वाई, राइट. देन it means it goes from the origin, and what if we use some points 0 and minus of 1, if this point satisfy this region inequalities or this also, it means this region is valid for that curve outside, यानी कि वो रीजन आउटसाइड को सेटिस्फाई करेगा इस केस के लिए. यानी 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो देख लेते हैं 0 रखने पर ये आउटर ऑफ दिस पाराबोला है और ये इनर ऑफ दिस पाराबोला. देन यहाँ से ये रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सेटिस्फाई, यानी कि यहाँ 0 आएगी. माइनस ऑफ -1 इज लेस देन 0, नो, इसलिए नहीं होगा. तो हमारा कर्व हो जाएगा ये अपवर्ड, यानी इनर रीजन को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इनर रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है. और नेक्स्ट के लिए यही कर्व होगी सेम, बट ऐसा होगा कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे. तो हमें मिला क्या, अब सिंपल सी बात है, अगर ये रीजन बॉन्डेड हो रही है तो उसका रीजन ये डाउनवर्ड आएगा. हम चेक कर लेंगे, बट ये मैं बता दिया. अब देखो ये सिमेट्री शो करती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो जिस एक्सिस के अबाउट रहे तो वो सिमेट्री शो करती है. तो यहाँ वाई एक्सिस के एक्सिस है तो सिमेट्री शो कर रहा है, यानी जितनी रीजन ये है उतनी ही रीजन ये है. अब हमें इस रीजन को फाइंड आउट करनी है, यानी एरिया. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट कर्व. तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए. अगर मिल जाए तो इस एरिया को फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल एरिया आ जाएगी क्या. यस, बिल्कुल. तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट 5x स्क्वायर इक्वल टू वाई, सोल्यूशन के लिए हमने इक्वालिटी ले लिया. एंड यहाँ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9. देन y के इक्वल में है दोनों, यानी 5x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9, दैट इज 3x स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 9. सो 3 टाइम्स में, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3, है ना. तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसके x कोऑर्डिनेट -√3, y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, यहाँ √3 एंड y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है. तो y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आगे की वर्क हम करेंगे नहीं, बस हमें केवल x का कोऑर्डिनेट चाहिए था. तो यहाँ से ये पॉइंट हमें मिल गया, राइट. तो बस अब यहाँ से निकाल लेते हैं. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होती है ना, तो एरिया 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी होती है लो. तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, एरिया फ्रॉम 0 टू √3. तो अपर कर्व की एरिया, रीजन ऑफ अपर कर्व इज व्हाट, इन x, यस, गिवन इज 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9. सो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9 dx माइनस 0 टू √3. देन लोअर कर्व, and lower curve is what, 5x square, 5 of x square and dx. Got their value and सॉल्व करें और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये आपकी रीजन है 2 टाइम्स ऑफ है, ना कि आप 2 को हटा करके आंसर लाना, एक ही गलती हो जाएगी. हमने आंसर लाने के लिए किया है ना ऐसा, इसलिए. तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से 2x क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ 9x, यहाँ से सब पे तो सेमी फंडा लगने वाला है, 5x क्यूब बाई 3. तो लिमिट हम क्यों ना एक ही पर 0 टू √3 कर ले, है ना. अब सॉल्व कर सकते हैं क्या, हो सकता है, बहुत ही आसान है. यहाँ से 2 इंटू √3 रखेंगे तो 3 √3/3
प्लस 9√3 माइनस 5 इंटू वन। अच्छा, यहाँ पर 5 है और यहाँ एक और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 9x माइनस 3 आएगा, तो 3 कैंसिल, यानी कि x क्यूब सिंपल सा आ गया ना, x क्यूब 0 to √3 what 2 9√3 माइनस 9√3 माइनस 3√3 और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। 6 to the 12√3 है क्या? यस, 12√3 इज राइट आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। गिवन है यहाँ पर a प्लस अल्फा इक्वल टू 1 एंड b प्लस बीटा की वैल्यू 2 गिवन है। देन एक फंक्शन की इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन, इसे हम फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, एंड वी हैव गिवन फंक्शनल इक्वेशन एंड दैट फंक्शनल इक्वेशन इज a f of x प्लस b अल्फा f of 1 by x equal to beta x plus b by x is given, right? Then we have to find fx plus f 1 by x by 1 plus 1 by x plus 1 by x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन इसमें क्या करते हैं ना कि x की इंटरचेंजिंग करते हैं। जब भी फंक्शनल इक्वेशन हो तो x में चेंजिंग करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, तो वहां पर रिप्लेस करते हैं। अगर x को रिप्लेस कर दे 1 by x से तो क्या आती है, a टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 by x प्लस अल्फा fx होगा क्या, इक्वल टू बीटा बाई x प्लस ऑफ bx मिल जाएगा क्या। x को 1 by x से हमने रिप्लेस कर दिया। देन ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई। अगर हम इसे दोनों को ऐड कर दें तो क्या आती है, लाइक आपने पढ़ा ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच लाइक कि लाइक टर्म ऐड होंगे, यानी कि यहाँ से a प्लस एफ एक्स होगा, सॉरी a प्लस ऑफ अल्फा इंटू एफ एक्स यहाँ से, और ये दोनों प्लस सिमिलरली a प्लस ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ से अगर कॉमन करते हैं तो बीटा कॉमन होगी x प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस b कॉमन होगी तो x प्लस ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसे कॉमन होगा क्या, यस मिला। तो यहाँ से हमें मिला f, देखें दोनों में सेम है, एफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स मिलेगा, और कॉमन पार्ट है a प्लस अल्फा, है ना, a प्लस अल्फा है। अब यहाँ से देख लो बीटा प्लस ऑफ b कॉमन होगा क्या, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन है, सॉरी ये कॉमन नहीं होगी, x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन होगी इन दोनों टर्म्स से। तो हमें बोल रहा है इसकी वैल्यू 1 है क्या गिवन, यस, और इसकी वैल्यू 2 है, तो हमें एफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू बोल रहा है, और ये डिनोमिनेटर में आकर के 1 प्लस 1 बाई एक्स हो गया, इक्वल टू क्या बचा, 2 ना, देन आ गया क्या 2। और इससे एक और सिंपल वे में किया जा सकता है, अगर इसे फिक्स किया है तो, ठीक है, क्या कि अगर यहाँ अल्फा, यानी कि देख लो ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इक्वल कर देते हैं, हाफ एंड हाफ, और यहाँ पर 1 1 कर देते हैं, तो क्या वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है क्या, जरा देख लेते हैं, हाफ एंड हाफ, यानी हाफ कॉमन, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, और बीटा की वैल्यू 1 1 है तो x प्लस ऑफ 1 बाई एक्स, तो ये 2 उस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होगा क्या। यहाँ से बहुत सिंपल में आ गया ना, ओके।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखिए ये क्वेश्चन 10th के बेसिस पर है क्या कि एक हाइट एंड डिस्टेंस है, दे रखा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन उस हाइट पर जहां पर है हमारा प्लेन, वहां से 60 डिग्री है, और 20 सेकेंड बाद ये 30 डिग्री हो जाती है। देन हमें प्लेन की हाइट ग्राउंड से बतानी है, यानी कि इसका सिंपल सा कर्व यानी कि ग्राफ ऐसा आता है। अगर यहाँ पर कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसा, तो अभी इस पॉइंट से अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो 20 सेकेंड बाद यही प्लेन यहाँ पर आ गई, है ना। तो यहाँ से ये जो प्लेन है वो 30 डिग्री हो गई, 30 डिग्री, है ना। तो ये जो हाइट है ये हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, जिस हाइट पे है उसी हाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसकी हाइट बतानी है, जबकि ये जो दे रखा है इसकी स्पीड है कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर जो टाइम लग रही है यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड, राइट। तो 20 सेकेंड में वो देखो 1 सेकेंड में 120 चल रहा है, राइट, 1 सेकेंड में 120 चल रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा, यानी कि डिस्टेंस हमें देख लेनी है। तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास में है 120 इंटू ऑफ 20 मीन्स 2400 मीटर, 2400 मीटर, राइट। तो यहाँ से अब हमें बस ये हाइट पे जानी है, ओके। तो मान लेते हैं यहाँ से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये आपकी हाइट ये डिस्टेंस आपका x रहा, राइट। तो यहाँ से आपका ये 2400 है, राइट, है ना। तो इन ट्रायंगल स्मॉलर यानी 60 डिग्री में, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, tan 60 की वैल्यू h बाई ऑफ x आएगी, h बाई x, यानी कि h इक्वल टू √3 ऑफ x, एंड tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर, यानी कि h बाई यहाँ से x प्लस ऑफ 2400 होगा क्या, यस बिल्कुल, यानी कि 1 बाई x प्लस ऑफ 2400 बाई √3 इक्वल टू h, दोनों h इक्वल है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या x की वैल्यू करके, हाँ दोनों में से कोई भी कर सकते थे ना। देख लो कैसे, कि यहाँ से x की वैल्यू h बाई √3 कर लेते हैं, और यहाँ से h की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या x इक्वल टू √3h माइनस ऑफ 2400 आ जाएगा क्या। और अगर ऐसा आता है तो दोनों को इक्वल करके वैल्यू निकाल लेंगे, यानी √3h माइनस 2400 इक्वल टू h बाई √3, और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3h माइनस 2400 ऑफ √3 इक्वल टू h, तो ये उस साइड जाएगा और ये इधर आएगा, तो 2h इक्वल टू 2400 √3 होगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि हाइट 12 हो जाएगा ना, 1200 इंटू √3 मीटर, यानी ग्राउंड से कितना मीटर, 1200 √3 मीटर का है ना, सिंपल सा। कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बोले क्या, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर AC 2B एंड AB वेयर ABC आर इन AP, ABC AP में है, तो हम जानते हैं ना गिवन डाटा को फर्स्ट लिखना होता है, तो ABC अगर AP में है तो ये क्या होगी, यानी कि 2B इक्वल टू A प्लस ऑफ C हो जाएगी ना, A प्लस ऑफ C, ओके ऑल राइट। तो इसे हम फोकस किए रहेंगे कि 2B इक्वल टू A प्लस ऑफ C है, और यहाँ से दे रखा है क्या कि वो उस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड भी गिवन है, और सेंट्रॉइड है क्या, पहले हम लिख लेते हैं AC, यहाँ से 2B एंड A एंड B, है ना, AB है, इतना है। तो सेंट्रॉइड होने का सेंस क्या जा रहा है, फर्स्ट लिख लेते हैं सेंट्रॉइड की वैल्यू जी, ये सेंट्रॉइड होगी 10/3 एंड 7/3, तो
a प्लस 2 प्लस ऑफ a बाई 3 इज इक्वल टू आपका 10/3 है, कैंसिल। सो a इक्वल टू आपका 8 तो आएगा, बट यहाँ पर 4 हो जाएगा क्या? यस, a की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, b नहीं, मीन्स b प्लस ऑफ c बाई व्हाट, बाई 3 इक्वल टू 7/3, 3 कैंसिल, 2b, और 2b की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा 2b इक्वल टू a प्लस सी, है ना। तो a प्लस सी, a प्लस ऑफ सी, 2b, ये मिल करके 2b a प्लस सी हो जाएंगे, प्लस ऑफ c इक्वल टू 7। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई क्या, यानी कि 4 प्लस ऑफ 2c इक्वल टू 7। सो 2c इक्वल टू व्हाट, 2c इक्वल टू ये इस साइड जाकर के 3 दे देगा क्या, 3। सो c की वैल्यू 3/2 आ गई। यस, 3/2 आ गई। तो a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिली। अब b की भी वैल्यू निकाल ले क्या, तो निकाल लेते हैं। b इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि 4 प्लस ऑफ c, c की वैल्यू 3/2 बाई ऑफ 2। सो यहाँ से हमें 8 11/4, 11/4 मिल गया b। अब देख लो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ए बी, बस ए बी चाहिए था हमें, सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सी बी को निकालने के लिए जरूरी थी। तो हमारे पास में अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 11/4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करनी है क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है ना, अल्फा एंड बीटा। यस, तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ कि जहां भी ऐसा कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक से हो और अल्फा बीटा में रिलेशन हो, तो क्योंकि हम जानते हैं बस दो ही बातें, एक आगे की 3 बातें, एक अल्फा प्लस ऑफ बीटा, वहां से एक अल्फा इंटू बीटा, और ये तो जूनियर क्लास तक, एक और आगे बढ़ जाते हैं अल्फा माइनस बीटा, ये भी होती है। ये हमें देता है माइनस ऑफ बी बाई, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए, एंड यह कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट डी बाई ए होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, लेकिन इस पे यहाँ पे जाने से बेटर है कि ये वाली एक्सप्रेशन हम ध्यान दें, यानी कि यहाँ से इसे हमें इन दोनों में कन्वर्ट करनी है। इसमें भी कर सकते थे, आ जाएगा, बट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगी, उससे इजी हमें मिल रही है। तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और -3 अल्फा बीटा इक्वल टू, हो सकता है ना, देख लो। यस, हो सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां से लिख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -11/16, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4। रख देते हैं, -11/16 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, यानी 3/4 इक्वल टू, सोल्व करनी है 1 to 1 प्लस ऑफ बाई 16 के स्क्वायर, जो भी है 16 का स्क्वायर, प्लस आप सोल्व करके फाइंड आउट कर लोगे क्या, यस, 3 माइनस 3/4 सोल्व करके फाइंड आउट कर लेना, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें भी थोड़ा सा टिपिकल कंडीशंस को अप्लाई करनी है और हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। देख लो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, कि आपको उसकी वैल्यू फाइंड, सॉरी हाँ, F1 की वैल्यू बेसिकली बतानी है। इसका मतलब वो क्या आ रहा है कि कौन से इंटरवल में होगी। अगर हम F1 की वैल्यू निकाल लें तो ये डिसाइड कर सकते हैं ना कौन से इंटरवल में है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करें तो मिलेगा fx इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस प्लस हो जाएगा f डैश ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, यानी f डैश ऑफ x का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 0 होगा क्या? अगर इन दोनों को थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखें, कितना अच्छा से अरेंज करके दे रखा है ना, कि अगर हम इसे ध्यान से देखें कि इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम एक टर्म्स लिख रहे हैं एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि फर्स्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डबल डैश एक्स होगी इंटू एफ एक्स प्लस, अब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब हम इसे इंटीग्रेट करें तो वापस में हम वहां पहुंच सकते हैं जो वैल्यू हमने निकाला था, यानी कि सॉरी जिसे हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। तो इसे इंटीग्रेट यहीं पे कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx ओवरऑल। तो क्या मिलेगा, यानी कि एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सम अनदर कॉन्स्टेंट मिलेगा ना। तो हमें बोल रहा है क्या कि f1 की वैल्यू, f0 की वैल्यू हमारे पास 1 है और f डैश 0 की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। तो f ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, k की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या आ रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो देख लो 1 इंटू 2 इक्वल टू k, सो k इक्वल टू 2 आ गई क्या, k की वैल्यू 2 आ गई। यस, अब हमें fx की वैल्यू बतानी, यानी f1 की वैल्यू बतानी। अगर fx मिलेगा तब तो हम बात करेंगे ना, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं fx f डैश ऑफ x इक्वल टू 2 इतना। तो अब यहाँ हम क्या करें, हाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो fx इंटू एफ डैश ऑफ x इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है dx, बाहर कर देते हैं, है ना। तो यहां से आप देख लो fx को t मानेंगे तो ये क्या आएगा ft dt, यानी कि f डैश x dx के स्थान पर dt यूज कर लेंगे तो होगा f x, मैं लिख रहा हूं इसकी रिजल्ट इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c यूज कर लेते हैं, है ना। अब वापस में फिर से 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f0 का होल स्क्वायर, हमें c की वैल्यू चाहिए इसलिए ये वर्क कर रहे हैं 0 प्लस ऑफ c, तो ये 1 यानी कि c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 1, तो रख लो ना f x होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1। तो यहाँ से fx इक्वल टू रूट ओवर 2x प्लस ऑफ 1, हमें फंक्शन मिल गया। तो f1 निकालना बहुत ही आसान हो गया ना। तो f1 क्या होगी, f1 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट 3 का कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, देख लो ना, हो गया क्या, हो सकता है पंगा नहीं, ये ज्यादा खुश होकर के नहीं ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिंग ऑप्शंस डाल चुका है। हालांकि ये 1.732 के अप्रोक्स में आता है और रूट 3 की वैल्यू वहां से स्टार्ट हो रही है ना। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन ही गड़बड़ है, ये ऐसा होना चाहिए था, नहीं 3/2 1 पॉइंट समथिंग, 3/2 1.5 एंड रूट ओवर 3, यस ये सही। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ना, क्या उधर सोचना है ना। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है, एक सर्कल है जिसकी नॉर्मल एंड टेंजेंट से बॉन्डेड एक रीजन है विथ एक्स एक्सिस के साथ, उसे हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं, और वो भी बोल रहा है क्या कि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर नॉर्मल एंड टेंजेंट है ना, यही ना बोल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 24, यस बिल्कुल, यानी कि ये उस सर्कल पर है। तो इस सर्कल को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल क्या आएगी, यहाँ पर 2 and 3 आएगा, कहीं 2 and 3, यस। तो ऐसे होगा क्या, जो भी होगा, हम रफ फिगर ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हमारी कौन सी पॉइंट हो जाती है, 5 and 7,
तो अगर ये 5 एंड 7 हो गया तो इस पॉइंट नॉर्मल, यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल जाने वाला इसके सेंटर से जाएगा, है ना। तो सेंटर से जाएगा तो इसकी इक्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, y माइनस वाई वन, यानी कि 3 इक्वल टू वाई टू, 7 माइनस ऑफ 3y ऑफ व्हाट 7, यस 5 माइनस ऑफ 2 इंटू x माइनस ऑफ 2, दैट इज y माइनस 3 इक्वल टू 4/3 इंटू x माइनस ऑफ 2, सिंप्लीफाई करने पर 3y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 8, सो यहाँ से 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी क्या, और अगर नॉर्मल की इक्वेशन आ गई तो टेंजेंट का भी इक्वेशन आ जाएगा क्या, यस बिल्कुल आएगा। तो देखो हमें इस इक्वेशन की जरूरत इसलिए थी कि ये पॉइंट आ जाए जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और कट करने वाला पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस को, ये होगा -1/4 0, तो ये पॉइंट हमें मिल गया -1/4 एंड 0, राइट। सिमिलरली ये वाली पॉइंट चाहिए हमें, तो इसके लिए ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए ना। तो ये इक्वेशन क्या होगा, अब हमें मालूम है ये नॉर्मल सॉरी टेंजेंट है यानी नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप हमारे पास में m की वैल्यू है कितना है 4/3 है, तो 4/3 है, तो ये 4/3, तो इसकी स्लोप हो जाएगी m इक्वल टू -3/4, है ना। तो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि y माइनस ऑफ 7 इक्वल टू -3/4 इंटू x माइनस ऑफ 5, सिंप्लीफाई करेंगे 4y इक्वल -28 इक्वल टू -3x प्लस ऑफ 15, ये उस साइड ये इस साइड कहीं भी, तो 4y प्लस ऑफ ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 4y, ये कैलकुलेटिंग है थोड़ा सा जिसमें हमें टाइम थोड़ा लगेगा, इक्वल टू नहीं माइनस कितना हो जाएगा, या उसी साइड भेजते हैं, उसी साइड भेज देते हैं 43, राइट। तो ये जो पॉइंट है हमें मिला व्हाट 43/3 एंड 0, राइट। तो देखो हम कितने वैसे बहुत कितने आइडिया बता दें कि जिससे ये एरिया आ जाए, क्योंकि हमें यही वाली एरिया चाहिए ना, यही वाली एरिया चाहिए, इसी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो हम वर्टेक्स को जानते, अरे वाह आसान तो हो गया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट से जा रहा है, डिटर्मिनेंट से क्या होगी 1/4 व्हाट 5 7 एंड 1 5 7 1, यस -1/4 0 एंड 1, एंड यहाँ पर भी 43/3 0 एंड 1, यही होगी क्या। तो देखो क्यों ऐसा हमने लिया, ये दो पार्ट 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड कर देनी है, तो हाफ ऑफ बहुत ही आसानी से आ गया ना, दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही सिंपल में कोई भी चीज़ें हो सकती है। देन -7 इंटू यहाँ से ये होगा देन -1/4 एंड -43/3, सो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा क्या। अच्छा कर ही लेते हैं, हम कंप्लीट करते हैं वर्क, टोटल पॉजिटिव हो जाएगी 7/2 इंटू 3 प्लस ऑफ 12 इतना आता है, यानी कि ये 7 इंटू 175/24 2 से मल्टीप्लाई होकर के, क्योंकि इससे ये कैंसिल होगी नहीं, तो हमें बोल रहे क्या कि 24 इंटू ए बतानी है, तो 24 इंटू ए इक्वल टू 24 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 175/24 24 कैंसिल, यानी कि 7 इंटू 175 जो आएगी यही आपकी आंसर होगी क्या। देखिए स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी,
is 65/12 and sum of their reciprocals is 65/18. Then product of first three terms is 1 and third term is अल्फा, थर्ड टर्म अल्फा है, देन हमें 2 अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करते हैं। अगर जीपी में है तो फर्स्ट 4 टर्म यानी a प्लस ऑफ ए आर प्लस ए आर ए स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 65/12 है, यानी a कॉमन होगा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर क्यूब इक्वल टू 65/12 हो जाएगा ऐसा। ऊपर में अगर हम चाहे तो इसे a इंटू 1 माइनस आर क्यूब बाई 1 माइनस आर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इस वाले एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं। नहीं पावर 4 होगी, यस यहाँ पावर 4 हो जाएगी इक्वल टू 65/12। हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो। एंड इसका रेसिप्रोकल का सम, इसी के रेसिप्रोकल की सम है, यानी कि 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब इक्वल टू 65/18 है ना, 65/18 है। तो 1/a कॉमन है क्या, 1/a अगर कॉमन करते हैं तो 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब इक्वल टू 65/18 है ना। लेकिन एक बात देख लो क्या, कि यहाँ से अगर इसे ऐड करते हैं तो 1/a एलसीएम आर क्यूब हो जाएगी, आर क्यूब, तो यहाँ आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में 65/18। और यहाँ से ध्यान से देखो तो हमें क्या नजर आ रहा है कि इतना की वैल्यू यहाँ से इस a को अगर इस साइड भेज दें तो 1/a हो जाएगा क्या, इनटू, बिल्कुल। तो वही वर्क हम यहाँ पर करें तो क्या मिलेगी, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब की वैल्यू 65 यानी 1/a इंटू 65/12a, ठीक है, ये हो गया बाई आर क्यूब इक्वल टू 65/18। ये तो हमें मिला, सिंप्लीफाई 65 कैंसिल, 12 से 6 से ये 2 टाइम्स में, 6 से ये 3 टाइम्स में, यस। तो हमें क्या मिलेगा, 1/a स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 2/3 यानी कि a स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू 3/2 आ गई, यस। अब एक और चीज दे रखा है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स a आर इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी कि a क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल टू 1 है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, a इंटू ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो a स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू 3/2 तो गिवन है ना, यस। यहाँ a इंटू 3/2 इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 2/3। a की वैल्यू मिली ना, a की वैल्यू, यस। देन हम क्या निकाल सकते हैं अब, यस, a की वैल्यू मिल गई तो आर की वैल्यू चाहिए, किस में रखें, इसी में रख लेते हैं। आर क्यूब इक्वल टू 1/a क्यूब, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आर इक्वल टू 1/a होगा, और 1/a होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू हमें मिल गया क्या, 3/2, यस। अब स्टूडेंट्स आप देख लो, थर्ड टर्म बोल रहा है ना, तो थर्ड टर्म क्या है, a आर स्क्वायर होगा क्या थर्ड टर्म, तो a की वैल्यू 2/3 इंटू आर स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो,
और सॉल्व करके जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ऐसा करते हैं 2 बाई कैंसिल हो जाएगा ना एक यहाँ से, तो 3/2 और 3/2 आया। देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए 2 अल्फा, तो 2 से हमें इसमें या 2 को इधर भेज देंगे तो 2ar² इक्वल टू 3 है ना, तो 3 इज राइट आंसर, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा चाहिए, अल्फा की वैल्यू ये है। ये नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए फिर से तैयार हो जाए। Yeah, given is a integration. This is a question for integration, but greatest integer GIF हमें इसमें कंबाइन करके दे रखा है ताकि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, है ना, बट डिस्टर्ब नहीं होनी है। देखो क्या है, यहाँ से इसे इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें सो 1 to 3 है, और GIF में हम जानते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू आएगी, है ना, जो भी है। तो हम इंडिविजुअली सबकी तो वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसा होगा ही नहीं, सही पैटर्न पे बैठेगा ही नहीं। तो हम कौन सी प्रोसेस अपनाएं, तो एक चीज ऐसा सोच सकते हैं कि एक टर्म ऐसा है जो कि इस इंटीग्रेशन में केवल एक टर्म बन करके रहे। अभी यहाँ पर 3 टर्म्स है ना, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि कंबाइन। तो आइडेंटिटी एक आइडिया है, तो आइडेंटिटी कौन सी, तो देख लो सामने नजर आ रहा है x² माइनस 2x प्लस ऑफ 1, इसको एक साथ लेकर के और माइनस ऑफ 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 to 3 ऑफ GIF x minus 1 whole square minus of 3, and what is the property of GIF? Property says the integral part comes out from the GIF, right? Then it will 1 to 3 of GIF of x minus of 1 whole square, x minus 1 square GIF and dx and minus integration 1 to 3 bar and dx ओवरऑल। तो ऑल राइट, तो अब देख लो आपकी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में ये इंटीग्रल यानी कि आइडेंटिटी को दे रहा है। वेल हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ भी मुश्किल आ रही है ना, बट हम सोच सकते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों ना हम अगर आइडिया जानते हैं तो क्यों ना हम इसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ से x माइनस 1 को हम t मान लेते हैं, वो x माइनस 1 को t मानेंगे तो देखो x माइनस 1 इक्वल टू t हमने ले लिया, तो dx इक्वल टू dt होगी, dt यस dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होगी, t की वैल्यू 0 लोअर लिमिट हो जाएगी अगर 1 रखेंगे, एंड t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 होगी, यानी कि 0 to 2 लेनी होगी उस केस में। और यहाँ t² और यहाँ dt माइनस ऑफ 3 इंटू 2 होगा। ओके, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो, बट थोड़ा सा संभल करके। 0 to 1 में ये 0 देगा वैल्यू dt प्लस ऑफ 1 to, अब देख लो ऐसा कौन सा है जहां पर इंटीग्रल दे रहा है, वो उन सभी इंटीग्रल पार्ट पे ये स्प्लिट हो जाती है, यानी कि इसकी जो पीरियड है, पीरियड तो नहीं है, यानी इसका जो इंटीग्रल पार्ट आता है वैसे वैसे पार्ट में हमें ब्रेक करनी है इसे, यानी कि 1 to √2 पर जाएगा, क्या 1 to √2 पर जाएगा। ऑल राइट, यानी 1 to √2 पर हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर वाली वैल्यू को देता है, तो यहाँ पर 1 इंटू dt आएगा। हमने बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं इंटीग्रेशन में, बिगिनिंग में ही डिफिनिट इंटीग्रेशन के, है ना, प्लस ऑफ √2 to √3, है ना, √3 की वैल्यू भी 2 से कम है, तो √3 भी यहाँ से 2 dt आएगी, प्लस ऑफ √3 to 2 एंड यहाँ पर 3 dt माइनस ऑफ 6। अब सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी आंसर होगी। यहाँ 0, यहाँ पर √2 प्लस √2 माइनस ऑफ 1 प्लस √3 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 यस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3
और -6। सॉल्व कर लो। √2 -1 माइनस प्लस 2√3 -2√2 प्लस 6 -3√3 -6 कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, यहाँ से ये आएगा -√2 और यहाँ से ये आएगा -√3। ओवरऑल -√2 प्लस √3 इस आंसर। को देखते हैं, ये एओडी से रिलेटेड है। बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट इस कर्व पर है और यहाँ से क्लोजेस्ट है, इस लाइन से क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट का मतलब समझेंगे कि अगर ये कर्व है, ठीक है, ये अगर कर्व है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन, देन द पॉइंट थ्रू वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन, right? At that point that tangent will be parallel to this line, gives the closest distance between this curve and this line, right? It means what? When we are getting that number, that means the slope of that slope of that tangent passing through the point is parallel to, is equal, right? So here from curve y equal to x square minus of 4, it's a tangent y dash equal to 2x, right? And here y equal to 4x minus of 4, here m is 4 and here m is 2x, then we got, and that is 2 equal to what? 2 की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी 2x इक्वल टू 4 हो गया क्या? देन यहाँ से 2 हुआ, यानी कि x इक्वल टू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम x की वैल्यू को इस कर्व में रख सकते हैं या फिर इसमें भी रख सकते हैं। वेल हमें उस कर्व पे चाहिए तो कर्व में ही रखेंगे ना। देन y फॉर ऑर्डिनेट, फॉर फाइंडिंग द ऑर्डिनेट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द parabola curve, that is x square minus of 4, and in that case 4 what 4 minus of 4 equal to 0 is what? That is 0 and no 2 and 4, गलती हो रही है नहीं, 2 and 0, 2 and 0, यस 2 and 0 वो है पॉइंट जो क्लोजेस्ट है इस कर्व पर, इस स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहे क्या कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 01379 इज इक्वल टू व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि उन सभी नंबर्स के नंबर कितने होंगे जो कि 7000 से स्मॉलर होंगे और इन सभी डिजिट का यूज करना है। देन हम मान लेते हैं फर्स्ट 0 बट नेचुरल नंबर होनी चाहिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 0 नहीं है, 1 डिजिट में फर्स्ट देख लो, अगर 1 डिजिट की कोई नंबर हो तो वो 7000 से स्मॉलर है ना। तो 1 डिजिट का हमें हमारे पास ये तो नहीं होगी बट ये सभी होंगे क्या, यानी कि 4 हो गया क्या 1 डिजिट के लिए 4। अब 2 डिजिट देख लेते हैं, और 2 it means here for 2 digit which number is required for this, the number of numbers are required for this place is only 4 because 0 is not अगर 0 को रखते हैं तो 2 डिजिट की नंबर फॉर्म होगी ही नहीं, है ना। इसलिए हमारे पास यहाँ कितना हो गया 4। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 हो गया, यानी कि ये आपका 20 आया। प्रोडक्ट रूल क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा है ना वर्क, और यहाँ पर एडिशन रूल क्योंकि ये एक नंबर फॉर्म हो गया 1 डिजिट की, यहाँ 2 डिजिट की नंबर फॉर्म हो गई, तो वर्क कंप्लीट और इनकम्प्लीट यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग हम ये प्रोडक्ट एंड एडिशन का रूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 3 डिजिट की नंबर है और 3 डिजिट के लिए सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 4 है, अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है ना। क्योंकि हम जानते हैं, देख लो फिर से मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ कि अगर 3 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है तो हमें फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 0 नहीं मांगता और 5 डिजिट टोटल है तो 4 ही है ना अवेलेबल इसके लिए, तो 4 हो गए। देन उसके बाद हम 0 रख सकते हैं, यानी कि 5 अवेलेबल है क्योंकि रिपीटेशन बोल रहा है अलाउड है, यानी कि जो पुट कर दे वापस में उसे भी हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो 5 and 5 सिमिलरली, तो ये हो गया 100 हुआ क्या, यस बिल्कुल 100 हो गया। अब 4 डिजिट, और 4 डिजिट में अब आप देख लो क्या, यहाँ तो 0 नहीं आने जा रही है, 0 नहीं आने जा रही है और 0 नहीं आने जा रही है, 7 भी नहीं आ रहा है।
0, 7 एंड 9 नहीं आएगा, तो 1 एंड 3 ही है ना। तो यहाँ पर हम 2 वे से कर सकते हैं क्या, 2 वे से इसको, क्योंकि 1 एंड 3 ही है नंबर जो यहाँ पर रख सकते हैं लेस देन के लिए, इन्हीं सभी डिजिट का यूज करने की कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये आपका 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ये कितना हो गया 10 और ये 25, 250, ऐड कर दो ना सब, कितना हो गया 100 और 70, 374, 324 इज आवर राइट आंसर, राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है जो 50 है एंड बी -50 आर 2 पॉइंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी, यानी कि पी ए एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी है ना। तो बोला है कि देन लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल, यानी कि लोकस ऑफ पी जो है एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। ओके, तो बोल रहा है लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल विथ रेडियस आर रेडियस भी है। देन हमें बोल रहा है कि 4r² की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। तो सिचुएशन देख लो, ये एक वर्टिकल लाइन पर है क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यहाँ पर अगर b है और ये b -5 एंड 0 होगी, देन यहाँ a होगी क्या, ये 5 एंड 0 है ना। तो चलो हम कोई नहीं, यहाँ पर वो लोकस एक है, बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो ऐसे ही होगा क्या, जो ऐसे आ रहा होगा ऐसा। तो कहीं से भी अगर हम वो पॉइंट ले लेते हैं, यानी सिचुएशन ये रहेगा जो दे रखा है, या फिर चाहे जैसा भी हो कंडीशन, बट P एक पॉइंट है जो H एंड K हम मान सकते हैं क्या। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इस रिलेशन को फुलफिल करेगा, P A यानी कि P A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P B है ना। तो पी ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में आता है ना डिस्टेंस, इसलिए हम स्क्वायर कर दिए, पी ए स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वायर। तो पी ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट यानी कि h माइनस ऑफ, यानी h का मतलब x होता है, x -5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ व्हाट x प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है ना, सॉरी k का मतलब y, तो सोल्व कर लेते हैं ना, यानी हमें मिलेगा x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस ऑफ y² इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9x² प्लस ऑफ 9 इंटू 25 प्लस 10, 9 इंटू 10x प्लस ऑफ 9y² ये 9 है ना। फिर अगर हमें यहाँ से कुछ करना पड़े तो इन्हीं सबको उस साइड लेकर चले जाते हैं ना, तो 8 ऑफ x² प्लस ऑफ 8 ऑफ y², देखो ये और ये दो वर्क उस साइड चला गया तो 9 9 है, तो 8 8 हो गया क्या, 8 हो गया, ऑल राइट। देन यहाँ से 10 माइनस में उस साइड जाकर के प्लस होगा क्या 10x, तो ये प्लस 90 और प्लस 10 यानी कि 100, सही है ना, कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो प्लस ऑफ 100x एंड देन y भी है क्या, नहीं है, यहाँ पर 25 है, यहाँ प्लस ऑफ 8 इंटू 25 इक्वल टू 0 है ना, ऐसा इतना आ गया, ऑल राइट। 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, टेन एक्स 9 से मल्टीप्लाई हो गया, हाँ ठीक है। तो हम देख लेते हैं 4 कॉमन है सब में, यहाँ पर 4x² प्लस ऑफ 4y² प्लस 4 25x प्लस यहाँ से 4 इंटू 25 इक्वल टू 0, ये 100 हो गया क्या। बट हमें यहाँ से x को सॉरी 4 को हटाना होगा, यानी कि x की कोफिशिएंट 1 एंड y की कोफिशिएंट 1 रखनी होगी, x² प्लस ऑफ y² प्लस 25/4 इंटू x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो चलो रेडियस ही ना, तो रेडियस का फॉर्मूला बोलो जल्दी से क्या होगी,
आर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, यही ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जी की वैल्यू -25/8 का होल स्क्वायर, तो और वो 0 है, एफ की वैल्यू 0 है, 25/8 होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 25 है क्या, यस 25। सोल्व करेंगे 625/64 माइनस ऑफ 25, तो ये कितना आता है, जो भी आएगा उसमें आप एक काम कर लेना, कितना करना है 4, है ना, 4 आर स्क्वायर कर लेनी है, जो आएगा वही वैल्यू है। तो 4 आप आर स्क्वायर कर लो ना, आर स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 25/64 इंटू 64 होगा क्या। देन आपको 4 आर स्क्वायर चाहिए, निकाल लो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। यस, देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं t इक्वल टू 0 होती है टेंजेंट किसी भी कर्व की, है ना, किसी पॉइंट पे पॉइंट गिवन है, देन t इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। बट अगर हम जाते हैं फाइंड आउट करने, तो है ना कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये बातें ना मालूम हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट जब अगर मैंने बता दिया तो अब सिंपल हो गया, चलो कर लो, है ना। लो जी, अब क्या है, तो हम जानते हैं t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 क्या होती है, अगर ये कोई भी है, मीन्स जैसे इसको ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ से ये क्या होगा, x1 प्लस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ y1 इक्वल टू 9, जब वो पॉइंट गिवन है, अगर ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उस पर ये टेंजेंट है उस पॉइंट पर, तो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो ये कर्व आनी चाहिए। ओके, ऑल राइट, हम यहाँ से करके देखते हैं, तो ये क्या होगी, 3√3/2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 9 इंटू 1/2 इंटू, यानी कि 9/2 लिखते हैं ना, y इक्वल टू 9, राइट, आई एम राइट, यस। 3/2 कॉमन कर लेते हैं, उस साइड भेज देते हैं, 3/2 यानी कि √3x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 3 × 2, यस। √3 भी है क्या, √3 कॉमन कर लेते हैं, तो √3 यानी कि x प्लस ऑफ √3y इक्वल टू, यहाँ से 2 × √3 आ गया क्या, अरे वाह, लो जी आ गया, यानी कि यही सेटिस्फाई भी कर गया, तो यही वो कर्व है जिस पे टेंजेंट ये है और उस पॉइंट पर है। देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि प्लेन फर्स्ट है और प्लेन सेकेंड, देन इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रही है और साथ ही साथ एक और पॉइंट से पास हो रही है, देन वी हैव टू फाइंड दैट प्लेन। इट मीन्स रिक्वायर्ड प्लेन इज द फैमिली ऑफ प्लेन passing through P1 and P2, right, and this will be such as our plane is right, two plane, this one is a P1 and this one is a P2, right, then the required plane which is passes through the intersection of these plane, two planes, that means a plane which is required to this is what is this, ये हो सकता है क्या, this is our P plane which is required and also passes through a given point, something somewhere, something and somewhere, not something, that is a given 1 0 2, and it may be somewhere 1 0 and 2 is our point. Then we know the family of plane is, that is a required plane is what, P1 plus of lambda times of P2 equal to 0, right, and P1 is written in Cartesian form. In Cartesian form is what, x plus of y plus of z equal to 1, and here x minus 2y equal to minus of 2, yes। तो इससे हम इस साइड लेकर आएंगे तो -1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर +2 इक्वल टू 0, है ना, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ x minus 2y plus 2 equal to 0, and satisfying this point in this,
we will got the value of lambda, and putting the value of lambda and getting simplify, and result is the required equation of plane. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे सेटिस्फाई कर रही है. क्या हो रहा है कि उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है. देन हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ दिस इज गिवन. देन यानी कि x dy by dx plus y b into x to the power 4 is a given. Dividing in both side by x, we will get dy by dx plus of y by x equal to bx cube. Now this is a linear differential equation. Yes, so integrating factor is e to the power integration of p dx, yani 1 by x dx, and this will be what, e to the power log of x, and this is x, right? That is y into x equal to integration of p into x, and that is b into x cube into of x dx. I'm right. Then integration of this, that is xy equal to b times of x to the power 5 by 5 plus of c. and given ये दे रखा है क्या, हाँ, fx की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, fx की इंटीग्रेशन 1 to 2 62/5 है. तब हमें b की वैल्यू बतानी है. तो थोड़ा ध्यान से देख लें आप. और कुछ नहीं दे रखा है. y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट इतना इक्वल टू इतना. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना कि क्या दे रखा है और क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो y इक्वल टू, y की y यहाँ पर डिवाइड बाई, सॉरी, एफ एक्स है. ओके, तो x से हम डिवाइड कर दें तो मिलेगा b बाई 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ c बाई एक्स, है ना. तो यहाँ से अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 1 to 2, यही बोल रहा है ना. इसकी वैल्यू 62/5 है, तो इसकी वैल्यू 62/5 हम पुट कर देंगे. b बाई 5 x टू द पावर 5/5 ये होगा क्योंकि इसे हमने इंटीग्रेट किया, प्लस ऑफ c बाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी व्हाट, log c, log of x प्लस ऑफ अनदर कांस्टेंट c. तो b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी गिवन डाटा के. कुछ तो डाटा दिया होगा. ओ ओके, ऑल राइट. ये वैल्यू 1 to 2 गिवन है, ये भी वैल्यू, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा. 1 to 2, यस यस, ओके. So 62/5 equal to what, b by 25 into 2 to the power 5 यानी 32 minus 1 प्लस यहाँ से c log of 2 minus log 1 यानी 0. तो ये होगा. अब इसकी वैल्यू 33 62/65 इक्वल टू व्हाट, b बाई, यानी कि 33 b बाई 25 प्लस c log 2. अब देख लो आप, log 2 की वैल्यू तो पॉइंट में आएगी, है ना. तो यहाँ से c यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है क्या होना चाहिए. अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ से ये c की वैल्यू मस्ट भी 0 है, तभी ये कंपेरेबल है. तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 62 b इक्वल टू 62/65 इंटू, नहीं सॉरी, 62/5. तो ये 5 से ये 5 टाइम्स में, है ना. तो ये 62 इंटू 5/33 ये होगा.